Okay, good morning, students. Good morning to all of you. Good morning, sir. Good morning. Nice, students. I was discussing with you yesterday secondary memory. Am I right? In that, I told you that these are the various examples of secondary memory. And secondary memory is that where the data and instructions and programs, softwares, or other things can be stored permanently. That you know, like hard disk. Even after 1 week, even after 1 month, after 1 year, you will open your laptop or desktop or your computer, and in that, whatever files are made earlier 1 year before, you will find that all those files are there. But you have not opened your computer from last 6 months, then all the files should be removed? No, because secondary memory is non-volatile memory. That is primary memory. When we switch off the computer, then all the contents are lost. So these I have discussed with you. Then I was on this slide that there are very many techniques to store the data permanently, in which one is magnetization technique. In magnetization technique, there is a disk. On that disk, there is magnetized material. There is a layer of magnetized material, and data is stored on that disk in the magnetized form. Not only used to store, but used to read also from that magnetized coating. And there is a head, and in that head is designed in such a way that can read that magnetized data. So data is stored in magnetized form in magnetic disk such as hard disk, floppy disk, etc. These are the best example of it. Then I discuss with you one optical disk drive in which light rays are used, in which laser light or some other kind of rays are used to read or write data on the disk. There is a kind of technique where light is used to write and read. That is known as optical. Means optics means light. And CD, DVD, Blu-ray disc, एक नया type of disc है Blu-ray disc. So this is a kind of disc where both layers can be used for writing and reading. दोनों साइड में read and write कर सकते हैं. तो डाटा ज्यादा स्टोर होगा Blu-ray disc में, और CD में कम होता है और DVD में थोड़ा सा ज्यादा होता है. तो वो CD में 500 से 600 MB ही तक डेटा स्टोर कर सकते हैं, और DVD में अबाउट 5 GB तक डेटा स्टोर कर सकते हैं, 5 GB गीगाबाइट. एंड ब्लू-रे डिस्क में जो मैंने बोला, शायद मैंने अभी एग्जाम इसमें दिखाया भी था तुम्हें. ब्लू-रे डिस्क, ये देखो ब्लू-रे डिस्क ये है, तो बीच में कलर आ रहा है ना ब्लू-रे वाला, ब्लू कलर वाला, वो है ब्लू-रे डिस्क. बोथ लेयर्स कैन बी यूज्ड फॉर राइटिंग एंड रीडिंग. एक और टेक्निक है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लैश मेमोरी, where data and instructions are stored or read from it in electronic form. So now this is a kind of flash memory. It is a kind of technique in which chips are used. You must have heard one semiconductor element, silicon. I think इसका atomic number 14 होता है, silicon. So solid state chip. It is a kind of semiconductor element, and this chip is, this element is best for drawing integrated circuits on that. To make integrated circuits on that, and more integrated circuits will be there. जितना ज्यादा integrated circuits होगा, उतना ज्यादा डेटा स्टोर होगा. तुम देखते हो कि स्मॉल सा छोटा सा चिप है, जैसे अभी डायग्राम में देखो, उसमें तुमको देख रहा होगा बीच में एक छोटा सा चिप,
और हार्डली इट इज हाफ एन स्क्वायर इंच बोलो। तो इसमें क्या होगा, अबाउट 16 GB डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो दिस टाइप ऑफ पेन ड्राइव और अदर काइंड ऑफ मेमोरी कार्ड्स which can store up to 128 GB data or more than that in a very small chip that is used solid state chip memory technique where data can be stored in 0 and 1 form electronically। तो इसको हम लोग बोलते हैं, तो तीन तरीके का टेक्निक हम लोग यूज करते हैं परमानेंटली स्टोर करने के लिए, एक तो मैग्नेटिक वाला, एक ऑप्टिकल और तीसरा फ्लैश मेमोरी। अब आ जाओ क्लाउड स्टोरेज में। जैसा कि तुम देख रहे हो यहाँ पे स्क्रीन पे, मैं एक डायग्राम दिखा रहा हूँ और इसमें एक क्लाउड बना हुआ है। तो इसका क्या मतलब है? कैन एनीबडी टेल मी द पर्पस ऑफ दिस क्लाउड स्टोरेज और मीनिंग ऑफ दिस क्लाउड स्टोरेज? एनीबडी? So storing data on the web. Storing data On the on internet. website. Okay, very The good. data very is stored virtually on the net. Very good. Very nice. Very nice. Okay, and so main aim is Sir, and that. it could be accessed at any time where internet is Yes, yes. available. Correct. Yes, because it is online. So you see, it is cloud storage which makes your data storage online. I mean, you can store your all files, folders, pictures, videos, images, not in a physical device. Rather, you can store it in a web server. And because it is stored in a web server, so you can access these all files, videos, and other things from anywhere, anytime, provided there must be an internet connection and a laptop or mobile phone. आपका मोबाइल फोन भी है तो आप आराम से कोई भी फाइल को कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। अब सोचो कि एक सिचुएशन हम बताते हैं कि आई हैव माय जनरली आई एम कीपिंग माय ऑल फाइल्स इन माय पेन ड्राइव। आई मीन जो बहुत इंपॉर्टेंट फाइल होता है मैं पेन ड्राइव में रखता हूँ। अभी भी मैं पेन ड्राइव लेके ही बैठा हुआ हूँ। और व्हाट हैपेंड, one day I come to know that due to some virus or some other kind of problem, my maximum of the files were damaged. And can't believe the files which I had made 15 years before, some pictures, videos, images, and question papers that were damaged. And I was so shocked. I can tolerate the loss of money, but I cannot tolerate the loss of my important, valuable files that I have made in last 10 years. I can tolerate 10,000 rupees loss, but I can't tolerate such type of loss of files. And I tried to get those files back, but 75% I recovered, 25% file I could not recover till now. And what I had done, I had to make those files again. You can understand how much time taking, and same work I have twice or thrice done. Sometimes what happens, you have kept your, inserted your pen drive in a particular computer and you forgot there itself, did not take pen drive. Other students came, they take your pen drive and they kept it because it's very small size, and your pen drive is lost. Again, your data is lost. Sometimes what happens, your pen drive is pressed by some hard thing, दब गया है, बहुत जोर से क्रश हो गया है, पूरा पेन ड्राइव ही काम नहीं करेगा, टूट जाएगा. So there is loss of these all. And most importantly, if we are dependent on a physical device, so we have to carry it everywhere. अब हम दिल्ली जा रहे हैं, वहां पे मुझे एक वर्कशॉप अटेंड करना है, वहां पे मुझे एक वर्कशॉप में क्लास भी लेना है. I have so many presentation slides that I made and I am storing in a pen drive. और जब मैं निकलने लगा तो पेन ड्राइव छूट गया घर में,
अब मैं दिल्ली पहुंच गया, तब मुझे आया अरे पेन ड्राइव तो वहीं अलमीरा के पास ही छूट गया। अब क्या करेंगे भाई? तो उतना सारा फाइल, इतना सारा पेन ड्राइव में कंटेंट्स है, उसको कैसे भेजेगा कोई? अगर आरुषि जैसी बेटी हो तो फिर पापा को बहुत हेल्प हो जाएगा, और तुम लोग जैसे बच्चे हो तो पापा लोग को बहुत हेल्प हो जाएगा। कैसे? कि तुम लोग उसको क्या करोगे कि सारा फाइल को गूगल ड्राइव में अपलोड कर दोगे और पापा को बोलोगे कि आप अब इसको एक्सेस कर लीजिए, है कि नहीं? लेकिन तुम्हारे जैसे अच्छे बच्चे होंगे जो पढ़े लिखे बहुत ज्यादा समझदार होंगे, तभी तो सबको ये बात कहाँ मालूम होती है। तो क्यों हम डिपेंडेंट रहे हैं एक पर्टिकुलर ड्राइव पे या फिजिकल डिवाइस पे? फिर कॉस्टली भी होता है, वो कैरी भी करना पड़ता है, डैमेज होने का भी खतरा है। तो नाउ वो सब हम लोग एडवांटेज और डिसएडवांटेज में समझेंगे। पहले आप क्लाउड स्टोरेज का डेफिनेशन लिख लो। A cloud storage is a mechanism or method and not a physical storage device. It is a mechanism, not a physical storage device. Mind it. ये एक mechanism है, ये एक method है cloud storage. It stores and back up your file to a secure server across the internet. It is the newest way of storing files and data. और ये एक नया तरीका है फाइल को स्टोर करने का और डेटा को स्टोर करने का। बेस्ट क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर्स, ये सब बहुत सारे क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर्स हैं। आप इसको 2-3 का नाम लिख लो, जैसे गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, डस्ट क्लाउड, ये सब कुछ। हम तो गूगल ड्राइव यूज करते हैं और बाकी लोग का नहीं मालूम क्या यूज करते हैं, लेकिन मैं गूगल ड्राइव यूज करता हूँ। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। Here you are working at your computer. Huh, what's that noise? Suddenly, a meteorite crashes to Earth, specifically into your living room. Sadly, your computer is no more, but thankfully all your music, photos, and important documents are stored online, in the cloud. When something is stored in the cloud, that means it's stored on internet servers instead of on your computer. It's like having an extra hard drive, one that you can access anywhere and anytime you're connected to the internet. In the past, you only had a home computer and the software you installed on it. Now you can take your files anywhere thanks to cloud-based applications called web apps, which run inside your internet browser. A web app that you may already use is Google Docs. It's free, you don't have to install anything to use it, and it allows you to create several different types of projects. You can access everything that you create in Google Docs from any computer or device with an internet connection. Since you only need a connected device to access the cloud, you can take your music, photos, and videos with you wherever you go. For instance, if you take a photo on your smartphone and upload it to a cloud-based photo storage service like Flickr or Picasa, you can access that photo on any of your other devices, on your computer, or even on your TV. You can share your vacation photos with friends and family while you're still on vacation. With your photos and other multimedia stored in the cloud, you'll never have to worry about losing them to a computer malfunction or rogue meteorite ever again. Storing files in the cloud is a great way to protect your important files from accidents, viruses, and more. You can use cloud-based storage services like Mozy or Carbonite to back up the contents of your computer. These services run continually and back up automatically, so you'll always have the most recent versions of your files stored in secure online servers. If something bad happens to your computer, you can easily transfer your backup files from your storage service to another device. So, what are you waiting for?
No matter how you use your computer, tablet, or smartphone, the cloud has something to offer you. Whether it's checking your email when you're traveling, backing up the photos and music that you love, or using web apps to work in different locations, the cloud can, and already is, making your life and the technology in it more manageable. Okay, so now with this video, it's very clear that what is the particular term cloud storage is and why do we use this particular system or mechanism. What are the benefits of it? One by one, you see on your screen, it is shown the main important or the most important advantage of the cloud storage system is the cost. We don't have to purchase any physical storage device like external hard disk, pen drive, don't have to purchase. And don't have to waste extra money for that. Whether you can do all this work with online storage without investing any money and the same cost, whatever cost you have given for the taking the data pack of the internet, उतना ही cost में तुम अपना आराम से data store कर सकते हो. Accessibility I just told you, anytime anywhere कहीं भी हम इसको access कर सकते हैं. किसी भी जगह पे हो, किसी भी टाइम में. रिकवरी का मतलब ये होता है कि जैसे कोई फाइल कभी कोई प्रॉब्लम आ गया, डैमेज हो गया, कुछ डिलीट हो गया, तो देन ऑल्सो वी कैन रिकवर इट फ्रॉम ऑनलाइन स्टोरेज क्विकली in comparison of any other physical storage device. So in the event of hard drive failure, अभी hard disk failure हो जाएगा, या pen drive damage हो जाएगा, so you cannot access your file. But in this case, other hardware failure, उसमें you can access the file from the cloud. You can access easily. Can access your file from the cloud. It acts as a backup solution also for your local storage or physical device. And syncing and updating when you are working with cloud storage, every time you make change to a file, it will be synced and updated across all of your devices. अब मान लो कि तुम्हारे पास एक कोई फाइल है, ठीक है ना? अब तुम नेट में आज इस मोबाइल में काम कर रहे हो, कल उस मोबाइल में काम कर रहे हो, बट फाइल वही है. तो एक भी जगह पे चेंज करोगे तो बाकी जगह पे भी वो अपने आप चेंज हो जाएगा. ये नहीं कि हम इस लैपटॉप में चेंज कर दिए हैं नेट के थ्रू. मान लो मेरे पास एक गूगल डॉक है. गूगल डॉक एक डॉक्यूमेंट फाइल होता है जो गूगल प्लेटफॉर्म का दिया हुआ है. उसमें हम जो भी चेंज करेंगे ना, तो हम किसी भी लैपटॉप में जाके ऑन करेंगे तो हमको वो चेंज जो हम चेंज किए हैं तो दूसरे में भी दिखेगा. दैट इज अपडेटेड इमीडिएटली. Okay, there is a common copy which is being shared in every place. And security तो है ही क्या? Because whatever files that you are using on web server, so obviously the web server sites will ensure whether you are uploading the file which is virus free, which does not have any kind of damage, danger for your computer system. Danger है तो फिर उसको नहीं करेगा. तो हर गूगल ड्राइव इतनी बड़ी कंपनी है, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका अपना एक अलग सिक्योरिटी सिस्टम. तो तुम कभी भी कोई फाइल अगर नेट पे डालते हो, अपलोड करते हो, तो वो अपने आप वायरस के लिए वो चेक हो जाता है. दैट इज अपडेटेड ऑटोमेटिकली एंड इट इज वेरीफाइड ऑल्सो. एंड सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न फॉर एनी वेब सर्वर. तो जब तक सिक्योरिटी नहीं होगा तो इंस्टॉल भी नहीं करेगा. But at the same time, some disadvantages are also there. क्या डिसएडवांटेजेस है कि इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन चाहिए मुझे. बिना इंटरनेट कनेक्शन का हम क्लाउड स्टोरेज यूज नहीं कर सकते हैं. एंड व्हेन यू आर प्राइवेसी इज आल्सो इंपॉर्टेंट. व्हेन यू आर यूजिंग अ क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर, तो डेटा इज नो लॉन्गर ऑन ए फिजिकल डिवाइस. अब हो सकता है कि कोई सर्वर में तुम ऐसा यूज कर रहे हो कि सर्वर इज नॉट सो ऑथेंटिक और ट्रस्टफुल. तो हो सकता है कि तुम्हारा डेटा हैक हो जाए या वहां से कोई आदमी इसको पढ़ ले. Sometimes it may happen. Your data which is stored in the web server might be used for some other purpose. Your email ID, your Aadhaar card number, etc. So little bit there is a security concern also while we store your file on the cloud storage. कोई ऐसा crucial file, ऐसा कोई important file अगर हम cloud storage में डाल देते हैं, कोई पासवर्ड है, हमारे पूरे सारे अकाउंट का सारा अकाउंट ID पासवर्ड सब उसी में रखे हुए हैं और वो भी नेट पे डाल दिए हैं, मतलब क्लाउड स्टोरेज में डाल दिए हैं, तो भले ही वो मेरे यूजर आईडी पासवर्ड से खुलेगा, लेकिन देयर इज अ थ्रेट.
हो सकता है कि कहीं कोई जो उसका ऑनर है, वो जो सर्वर चला रहा है, उसके पास तो बहुत सारे टेक्निक है ना, तो वो कहीं कोई टेक्निक से जान जाए मेरा यूजर आई डी पासवर्ड, मिस यूज कर सकता है, मिस हैंडल कर सकता है। तो खैर जो भी हो, ये सब डिसएडवांटेज में ही आएगा। सपोर्ट भी है। सपोर्ट क्या है? सपोर्ट फॉर क्लाउड स्टोरेज इज नॉट बेस्ट। सपोर्ट उतना अच्छा नहीं होता क्लाउड स्टोरेज में। कभी कभी कोई प्रॉब्लम आ जाएगा तो फिर तुम किसको खोजोगे, किसको बताओगे, तो किसको किससे हेल्प लोगे, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। and cost is there what there are additional cost for uploading and downloading files from the cloud। ये हम बहुत बड़ा बात नहीं मानते हैं कि अपलोडिंग कॉस्ट और डाउनलोडिंग कॉस्ट। हो सकता है कि जैसे मान लो तुम कोई पिक्चर फाइल है, कोई इमेज फाइल है, वीडियो फाइल है, तो उसको डाउनलोड करोगे तो डाटा पैक जल्दी खत्म हो जाएंगे, तो वो एक मतलब लॉस हो सकता है। तो डाटा पैक खत्म हो जाएगा तो फिर हम फिर से बनाना पड़ेगा मुझे। पर पेन ड्राइव में तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। मान लो हम 800 रुपये का पेन ड्राइव ले लिए तो वो चलते रहेगा जिंदगी भर। तो लेकिन अब देखना होगा कि इसमें कौन ज़्यादा तुम्हारे वर्क के हिसाब से ज़्यादा यूजफुल है। अगर तुम वर्किंग प्लेस में तुम हमेशा यू आर ऑलवेज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और यू आर गोइंग फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन, देन ऑलवेज क्लाउड स्टोरेज ही सजेस्ट करेंगे, फिजिकल डिवाइस स्टोरेज नहीं यूज करेंगे। लेकिन अगर एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, रोज एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, दैट यू नो दिस इज योर कंप्यूटर, या ऑफिस में भी तुम एक ही जगह पे बैठते हो, रोज वहीं पे काम करते हो, तो फिर तुम पेन ड्राइव यूज करो, कोई दिक्कत नहीं। तो नाउ इट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड व्हाट इज क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है। चलो अब हम बता रहे हैं, अब हम पूछना चाहेंगे तुमसे कि नेक्स्ट टॉपिक हम क्या पढ़ाने वाले हैं, बताओ। एक डायग्राम हम दिखा रहे हैं, पिक्चर दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, एंड आई एम टेलिंग यू टू गेस। गेस करो कि अगला टॉपिक क्या पढ़ाएंगे हम। चलो एक और दिखा देते हैं, अब बताओ। Sir, output devices. इनपुट डिवाइसेस, इसमें तो इनपुट डिवाइस भी है, कीबोर्ड भी रखा हुआ है, और इसमें प्रिंटर भी रखा हुआ है, Collection of all devices. और इसमें सीपीयू भी रखा हुआ है, तो इसमें स्टोरेज डिवाइस भी रखा हुआ है। देखो यहाँ पे पेन हार्ड डिस्क भी रखा हुआ है, प्रोजेक्टर भी रखा हुआ है। So computer hardware. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। व्हाट इज योर नेम? So my name is R Ganesh. R Ganesh, very good boy. R Ganesh, I know you very well. Very good. So now see, this is hardware I am going to discuss with you, and you all know that what is hardware. Hardware is the computer parts, physical parts, computer parts, electronic and electrical parts. I had already discussed with you for the hardware, but then I am telling you that this can physically touch and physically. Now, can you tell me what new topic I am going to discuss? I have not knowingly hidden the title, and after your opinion, I will show the title. Can you tell me what new topic I am going to discuss? Search The engines. software. Very good, very good, very good. Wonderful. अरे तुम लोग बहुत अच्छे student. Very good. You all will take computer in class 11, and you will make your future in technology. Technological subject is very important. In future, you understand nowadays how much this technology is being used and what role the technology has played. आज के डेट में अगर टेक्नोलॉजी नहीं रहता तो हम लोग क्या हाल होता। आज डिमांड कितना है टेक्नोलॉजी का, देख रहे हो। और जो बच्चे, मैं किसी सब्जेक्ट का नाम नहीं लेता, लेकिन मैं बोलता हूँ कि जो XYZ सब्जेक्ट लेके पढ़ते हैं, जो यूजफुल सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन वो सोचते हैं कि हमको मार्क्स मिल जाएगा, ये हो जाएगा, पेंटिंग है चाहे कोई भी है, तो उनके लिए सोचो कि क्या मुश्किल होगी फ्यूचर में कि उनको कोई भी उस सब्जेक्ट का वैल्यूएशन नहीं मिलेगा, उसको रिटर्न नहीं मिलेगा। और आज तुम जो पढ़ रहे हो, तुमको हो सकता है फ्यूचर में उसका, हो सकता नहीं 100% श्योर, उसका रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। और मैं तो ये भी सुन रहा हूँ कि IIT में हो सकता है कि एक पेपर ऐड कर दिया जाएगा कंप्यूटर साइंस, जिसमें कि तुमको कंप्यूटर्स का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, IP का क्वेश्चन पूछा जाएगा।
यू कैन ऑप्ट आइदर केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस और लाइक दैट। तो इसमें फ्यूचर में तुमको बेनिफिट होने वाला जो चीज उसको ऑप्ट करना चाहिए। और तुम लोग इतने अच्छे स्टूडेंट हो, तो मैं देख रहा हूँ कि आज 11 बच्चे ही हैं या 10 बच्चे ही हैं, पहले दिन 20 बच्चे थे। तो क्या कुछ विशेष प्रॉब्लम है क्या? कुछ बच्चों ने छोड़ दिया? सर लोग बहुत छुट्टी मारते हैं सर। छुट्टी मारते हैं तो फिर एडमिशन क्यों लिया था? छुट्टी मारना था तो एडमिशन ही नहीं लेना था, फिर घर में बैठना था। 2000 रुपया देके छुट्टी मारना तो फिर इतना अच्छा से पढ़ाया जा रहा है, उनको नहीं मालूम कि बाकी सब्जेक्ट का क्या पढ़ाई का तरीका है। तो हम तो कोशिश कर रहे हैं कि अच्छाई से पढ़ा रहे हैं। आर यू हैप्पी विथ दिस ऑल? यस सर। Yes, sir. यस सर। तुम लोग को थोड़ा वीडियो दिखा रहे हैं जानबूझ के। क्लास में आओगे तो इतना वीडियो नहीं दिखाएंगे, समझे ना? अभी क्योंकि ऑनलाइन क्लास चल रहा है 40-40 मिनट का, तो हम वीडियो दिखा के तुम लोग को पढ़ा रहे हैं। क्लास में आओगे तो फिर जल्दी जल्दी खींचेंगे। फिर अभी इंजॉय करो, वीडियो देखो। हाँ, वीडियो देख के खूब इंजॉय करो। तुम लोग लिखते भी हो? हाँ, Yes, कॉपी में sir. उतार रहे हो सब? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो बाकी बच्चों को भी बोलो कि मतलब अटेंड करने के लिए क्लास, ठीक है? और कल परसों तरसों 3 दिन जो है ना, वो हो सकता है कि हम क्लास नहीं लेंगे, दत्ता सर लेंगे, ठीक है? अब 3 days in a week I will take and 3 days in a week दत्ता सर will take. So accordingly you will just see, okay? तो मेरा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे क्लास रहेगा, ठीक है? तो नाउ सी, सॉफ्टवेयर तक मैं पढ़ा देता हूँ। सॉफ्टवेयर तुम लोग का क्लियर हो जाएगा, उसके बाद अगले वीक में नया टॉपिक ले लेंगे हम लोग, और कुछ हम प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे तो और मजा आएगा। तो ये सॉफ्टवेयर क्या होता है? जैसे सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम, हार्डवेयर का उल्टा नहीं बोलना। बोला हार्डवेयर इज द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, तो सॉफ्टवेयर बोलेंगे इट नॉट अ फिजिकल पार्ट ऑफ द, कभी नहीं बोलना, एकदम गलत डेफिनेशन। उसका उसका जो भी होगा इसमें नो लगा देंगे तो थोड़ी हो जाएगा डेफिनेशन। डिफरेंसेस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर इज द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, सॉफ्टवेयर इज नॉट अ फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। ये तो थोड़ी होता डेफिनेशन। हम लोग को डेफिनेशन नहीं इस तरह से लिखना है, बताना है कि एक्चुअली सॉफ्टवेयर है क्या, ठीक है ना? हम तुमसे पूछ रहे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मैंगो एंड ऑरेंज, तो तुम बोल रहे कि ऑरेंज इज ऑरेंज इन कलर, तो मैंगो में बोलेंगे कि मैंगो इज नॉट इन ऑरेंज इन कलर। ऑरेंज इज हैविंग विटामिन सी, तो मैंगो इज नॉट हैविंग विटामिन सी। अरे तो उसमें जो है इसका उल्टा कर देंगे इसमें। तो बताना है कि मैंगो क्या है, यानी सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर इज सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स, इंस्ट्रक्शन, जो कि क्लास 11 में नहीं 12 में, 11 में भी तुम लोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करोगे, सीखोगे कि हाउ टू राइट वेरी स्मॉल 4 लाइन का, 5 लाइन का, 6 लाइन का, जो 10 में भी कराए थे तुम लोग को पाइथन में, याद करो। टू एक्सेप्ट द मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट 5 सब्जेक्ट्स एंड फाइंड द टोटल परसेंट। छोटा छोटा, हालांकि तुम लोग उस समय बहुत सीरियसली नहीं लेते थे, लेकिन अब 11 में तुम लोग को एक सब्जेक्ट मिल जाएगा तो तुम लोग इसको सीरियसली लेंगे। तो दैट ऑल programs which are already ready-made programs like MS Word, Excel, PowerPoint, Windows, these are software, these are not hardware, and these softwares are actually computer programs which are used to do what? Which are used to run your computer system, or not only used to run your computer system but also to perform यूजर डिफाइंड टास्क। मतलब जैसे बायोडाटा बनाना, बिजनेस लेटर लिखना, एप्लीकेशन लिखना, म्यूजिक सुनना, वीडियो प्ले करना या गेम्स खेलना, ये सब तो यूजर डिफाइंड टास्क है। उसके लिए भी सॉफ्टवेयर ही यूज करते हैं। तो नॉट ओनली टू रन योर, अभी मेरा कंप्यूटर रन कर रहा है, मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे ये सब दिख रहा है, मेरे कंप्यूटर में स्टार्ट बटन क्लिक किया, ऑन आ गया, मतलब डेस्कटॉप आ गया, ये कोई जादू नहीं है। These are software. These are software. So these softwares are basically of 2 types. एक जो टाइप होता है वो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, और एक एप्लीकेशन। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो कंप्यूटर सिस्टम को रन करने में हेल्प करता है, जो अभी हो रहा है।
मेरा मेमोरी, मेरा हार्ड डिस्क, मेरा स्क्रीन, मेरा इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सब चीज ऑपरेट हो रहा है, नॉट बाय एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बाय सिस्टम सॉफ्टवेयर। और उसमें भी 4 पार्ट होता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। दूसरा पार्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसका काम ये होता है कि वी यूज टू डू योर टास्क। तुम्हारा काम करना है, जैसे बायोडेटा बना रहे हो, जैसे एप्लीकेशन लिख रहे हो, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू होगा। जैसे म्यूजिक सुन रहे हो, वीएलसी मीडिया प्लेयर के थ्रू सुन रहे हो, तो वीएलसी मीडिया प्लेयर क्या हुआ? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। So these are the two types of software. With this, I would like to finish today's class, friends. So if you have any doubt, you can ask from me. Otherwise, next week I will meet with you. Do you have any doubt? Do you have any doubt?